enter is that Larkana have won the toss and they have opted to bowl first. It will be interesting to see how they go about posting the total, because Bangalzai and Bismillah took their time initially because they were chasing and they were comfortable knowing at what run rate they have to go. But now, with Dew later on in equation, we'll have to see how much total they have in their mind. Abdul Wahid Bangalzai, he's technically correct, he's got a good temperament, and obviously they would like to post something beyond that 180, because you have to add 20, 25 odd runs, keeping that Dew factor in mind. Yasir Khan couldn't really impress the other day, but he has another opportunity tonight. Shahnawaz Dhani. He will start off the proceedings for Larkana as Kamran Khalil. Let's play. It's a good start on target. We saw in the previous game bowlers who pitched it up were brave enough to bowl in that area. They found the success. Picked up, slightly shorter and straight to the fielder. They had just adjusted him wider from the previous position, and he has played down the throat. Big one for Larkana. It's Wahid Bangalzai. It's a massive one. Man in form, Abdul Wahid Bangalzai. And correctly mentioned, they just checked the fielder and this very delivery. Shahnawaz Dhani was on target, got big on him. It's more of a just played with it rather than just looking at it and placing it. Kolora took a great catch in the previous game. Smart one here also. Abdul Wahid Bangalzai going after scoring 2 runs. It's 2 for 1. It's in the air, by the way. That's how he plays. He's very wristy. Is Bismillah Khan. He will get the first boundary for Quetta. Flicked it beautifully and in the gap. That's a Bismillah special. And again. This time it's gone all the way for 6. That's gorgeous batting from Bismillah Khan. Four more. That's poor bowling. Asking for trouble. Very poor bowling from Mushtaq. He's played it over the head of the fielder. Learning from the best from the other end is Yasir. He moves to 10. That's good shot. Up and over for 4. That's brilliant batting. Anything pitched up, he's going after it. ऊंचा स्ट्रोक है ऑन साइड पे अच्छा पिक किया है अब देखना होगा कितनी दूर जाता है दीजिए जनाब
ये उस खंदक को भी पार कर गया जो कि हिफाजती तौर पे वहाँ पे तामीर की गई है। अली असगर गेंद करेंगे। बहुत ही अच्छी शॉट बिस्मिल्लाह खान की, और 4 रन्स के लिए देख लिया था कि जो स्क्वायर लेग के फील्डर है वो थोड़ा सा स्क्वायर ज्यादा है। अच्छी कट मिसफील्ड हुई, 4 रन्स। यहाँ पर क्या कहा जाए, 27 पर पहुंच गए हैं। इस बार आउटरेज लगा है, अदर वे अराउंड गेंद जाएगी अब थर्ड मैन की जानिब, और एक और चौका। एक पाए के बैट्समैन हैं, शॉट बना लेते हैं। इस बार ड्राइव किया, गेंद डीप कवर की जानिब गई है, वहां पर कोई फील्डर नहीं है। 4 रन्स। ये स्वीप है और काफी फाइन है। देखना ये होगा कि बैट को लगी है या पैड को, अंपायर का सिग्नल है। 4 रन्स। Oh, picked up nicely, tossed up, went with a full swing and sailed over the boundary for a maximum. And we'll pick up another one. Brilliant innings yet again from Bismillah. He's loving his batting out in the middle. Scored an 85 the other day. Carries it on. Another one for Bismillah. तो आपने बात की अच्छी इनिंग्स की, पहले मैच में आपको मौका नहीं मिला, तो कितना मुश्किल होता है एक बैटर के लिए दूसरे मैच में आप खेले और अपना करियर बेस्ट किया आपने? जी बिल्कुल, एज अ प्रोफेशनल बस ये है कि मेरा माइंड में ये रहता है कि मैं बिस्मिल्लाह आपसे बात करेंगे। यहाँ पे विकेट गिर गई है बिस्मिल्लाह की। गुड बॉलिंग फ्रॉम जाहिद द स्किपर, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिस्मिल्लाह has gone and Zahid Mahmood completes his 100 wicket in T20 format. No worries there. Trying to charge down the ground, Bismillah, on that occasion. Missed the line completely. It just kept on going, and good glove work. Yeah, that's brilliant from Zaid Mahmood. And Bismillah also. He completing his 100 wickets and Bismillah scoring his 51 of 32 deliveries. Deep into the crease. Got tall on him. Point getting in line. Oh, got him on the second chance. Big one. This is Yasir. An important wicket in the context of the game for Larkana. Yeah, a couple of very good overs for Larkana. Zaid Mahmood got Bismillah in the previous. And now Mushtaq getting the other set batter out, Yasir. It's very disappointed that he could not get to his half century. No worries at this end. Again outside the off stump, he wanted to just whack it towards onside. 9 out of 10 times it will just balloon in the air. That's not an advisable shot for the youngsters to be playing. Yasir Khan goes 45 runs. He scored of 38. It's 108 for 3. Again short and wide. Fetched it from outside of the off and gone. The plan is working for Larkana. Good execution on this occasion from Mushtaq. Another one down for Quetta. Yeah, that's what he was trying to do in the previous delivery. He could not execute it, but this time it worked. Another batter, similar sort of dismissal where a batter is trying to fetch it from outside the off stump and hitting one in the air, and a smart catch under pressure. So 3 wickets have fallen inside 8 deliveries for Quetta. Slammed and beaten the fielder. Picked up nicely by Salahuddin. It was shorter, straying down the leg and was punished. Refused to give up. And Quetta is not ready to give up. Salahuddin in particular, this time again slightly on a shorter side, Mushtaq has been once again punished. इन दोनों बैटर्स को इसी तरीके से रन बनाने हैं, हर ओवर में एक आध बाउंड्री लगानी है। ये बेहतर तरीका है। इस बार गेंद को उठाकर खेले हैं ऑन साइड पर और गेंद गई है 6 रन के लिए बाहर। बड़ा जोरदार छक्का। एक और पुल इस बार काफी ऊंची गई है, देखना होगा कहां जाती है, कहां नहीं जाती। बिल्कुल कहीं नहीं गई, सीधी फील्डर के हाथ में। अब जब इस ओवर में 14 रन बन चुके थे तो इसको इस तरीके से खेलना मेरे ख्याल में सूरत हाल के मुताबिक दुरुस्त नहीं था। सीधा मिड विकेट पर गया जहां पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच लिया गया और धानी वाज द मैन इन चार्ज। बड़े खुश हैं। अगर हम इस गेंद को देखें, बिल्कुल लीगल डिलीवरी थी, इसमें कोई गैर कानूनी मूवमेंट नहीं थी और गेंद इस तरीके से सीधी फील्डर के हाथ में गई। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच, दौड़ते हुए गिरते हुए बचे बाल। तो इस तरह
धानी ने एक अच्छा कैच लिया और सलाउद्दीन 24 रन बनाकर आसिफ की गेंद पर आउट हुए। क्वेटा 139 फॉर 5। ये जोरदार हिट है और ये बहुत दूर जाएगी 6 रन के लिए। अच्छी अटेम्प्ट थी। गुलाम रजा अगली गेंद करेंगे। ड्राइव, जोरदार ड्राइव है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की जानिब और 4 रन। देखना होगा ये किस किस्म की बॉलिंग करते हैं। इस गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑन साइड पर और गेंद फजा के अंदर बुलंद हुई और बहुत पीछे चली गई और एक अटेम्प्ट थी जिसमें 100% कामयाब हुए बैटर। अगली गेंद किस तरीके से करेंगे। इस गेंद को जोरदार तरीके से कट किया है, जबरदस्त कट है और फील्डर की डाइव। अब ये देखना होगा क्योंकि लगता है कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। ये 4 रन भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। बहरहाल फील्डर दौड़ते रहे। अब जो ऑन फील्ड अंपायर हैं वो टीवी अंपायर से मेरे ख्याल में बात करेंगे। तो वो कहते हैं ना, मुझे लग रहा है कि बहुत देर की मेहरबान आते आते। तो बहरहाल अभी ये टीवी अंपायर को हतमी फैसला करना है कि गेंद जब हाथ में थी उस वक्त जिस्म का कोई हिस्सा था या नहीं था। और 4 रन अब दे दिए गए हैं। तो ये थैंक यू फॉर द कैमरा वर्क एंड ऑफ कोर्स द टीवी प्रोडक्शन। ऊंचा शॉट ऑन साइड पर, गेंद गई है एक टप्पा लगने के बाद 4 रन के लिए बाहर। ऑलमोस्ट कामयाब हैं। ऑफ साइड पर ड्राइव एक्स्ट्रा कवर की जानिब, वहां पर 2 फील्डर थे, डाइव किया, रोक नहीं पाए और एक और चौका। तो इस तरह अब ये तीसरा चौका लगा है एक छक्के के अलावा। छक्के से बचना होगा इन्हें। और ये एक फुल लेंथ गेंद थी और 1 रन का इजाफा, लगता है कि 1 रन आउट भी हो गए। अब जो मुश्किल सूरत हाल है वो हसीबुल्लाह के लिए। हसीबुल्लाह पहुंच नहीं पाए और एक जो जिसे कहते हैं चीके सिंगल लेने की अटेम्प्ट थी और इस तरह एक विकेट गिरी है। जो आखिरी ओवर है बड़ा बेहतर किया। ड्राइव ऑफ साइड पर डीप कवर की जानिब। तो ये अब सूरत हाल है आपके सामने। 20 ओवरों में क्वेटा ने एक बहुत माकूल स्कोर खड़ा कर दिया है। 186 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। हसीबुल्लाह नॉट आउट रहे 21 रन बनाकर 26 गेंदों में। जुनैद ने अपना खाता नहीं खोला और इस तरह 9.30 की बड़ी उम्दा औसत है और जो दरकार है इस वक्त लाड़काना को, जबकि 186 रन क्वेटा ने बना लिए हैं। गुलाम रजा ने आखिरी ओवर बहुत अच्छा किया और बैट्समैन को खुलकर खेलने की कोई इजाज़त नहीं दी। वो विकेट टू विकेट तो गेंदें उन्होंने नहीं की। ऑफ साइड द ऑफ स्टम्प वो ज़रा थोड़ी वाइड गेंदें करते रहे, बैट्समैन चेस करते रहे। उन्हें ज़ाहिर है कि इस सिलसिले में मुकम्मल कामयाबी हासिल हुई। लेकिन मजमूई तौर पर 186 एक माकूल स्कोर है और इसको चेस करना होगा लाड़काना को। ये बैटिंग कार्ड है। 45 रन बनाकर यासर जो हैं वो टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 51 रन गिनने के लिए बिस्मिल्लाह खान ने वो तवातर के साथ रन बना रहे हैं। हसीबुल्लाह 21-24 रन बनाए सलाउद्दीन ने और अच्छा कंट्रीब्यूट किया। मोहम्मद इब्राहिम ने 27 रन बनाए सिर्फ 10 गेंदों में। 186 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 16 एक्सेस के रन भी शामिल हैं। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जो डे नाइट क्रिकेट की जा रही है, ये लाड़काना लीजन की बॉलिंग है। आप देख लें कि इसमें कुछ ज़्यादा कामयाबियाँ समेटी नहीं। मासवाइज के मुश्ताक ने 2 विकेटें हासिल की 39 रन देकर। एक विकेट हासिल की बिरतरतीब शाहनवाज, धानी, आसिफ, जाहिद और गुलाम रजा ने। फॉल ऑफ विकेट भी आप देख सकते हैं। 186 6 विकेटों के नुकसान पर मजबूर स्कोर रहा एज बॉलर्स हैं इनके खिलाफ। तो बाय भी नहीं कहना होगा कि एक अच्छा मैच होने के लिए जा रहा है। लाड़काना ने एक स्प्लेंडेड जॉब किया है बाय देयर एक्सीलेंट बैटिंग, एग्रेसिव बैटिंग, बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट भी रहा। तो यहाँ पर अब बहुत जल्द दूसरी इनिंग का आगाज़ होगा। जैसे ही दूसरी इनिंग का आगाज़ होगा हम आपको दोबारा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ले आएंगे। Najibullah with the new ball in hand and Bismillah Khan, the keeper, setting fielders. There's a slip, there's Gully, or is it Hasibullah? We shall know once the camera goes close. Mr. Kamran, the on-field umpire, calls play. Right, first delivery of the run chase. And accurate.
He mostly has been Najibullah in this tournament because he's the experienced one, and he doesn't get excited with the situation. He just sticks to the business. Oh, it's up in the air. Fielder, he takes it. Beautiful. Excellent cricket all around from Quetta region. They bowled with purpose in the right areas, frustrated the batters, and now they've got their first wicket without any score on the board. The appropriate question is, Malhar, what are you up to? Very first ball that you face, no problems with the front foot there, perfectly legitimate ball. And just have a look at what sort of a shot he plays. Could we have the replay, please? Yeah, he's walking back, disappointed, but he has brought upon his own demise with a poor choice of a shot. Gone straight to the fielder. Cannot get more worse for Larkana. They lose their second wicket. Pitched up, went for it, and straight to the fielder. Yeah, exactly. Once again, just going with the hands, no feet at all. Just pushing one in the air and hoping that it goes in the gap. Not to be, it went straight to the fielder, who makes no mistake, in fact takes a good catch above his head. Ibrahim is the fielder, and the batter who goes back after a 7-ball duck, Ubaid Raza, and Larkana in further trouble, 8 for 2. This is a big one. Bounces and gets to the boundary, finally. And this is an outside edge this time, and there's a fielder there, and he makes no mistake. Hasibullah it is, he takes the catch, and a third wicket down for Larkana. Yeah, again, it's Khalil getting the reward of good bowling of Najibullah, remember, from the other end. Because he's giving nothing away, so they're looking to attack Najibullah, and in doing so, they're losing their wickets to him. This one almost popped out, but he did well, gathered it the second time. Another one bites the dust. Zahid Hussain this time, 18 for 3. ये बेहतर तरीका है, मिलाकर एक बाउंड्री हासिल की है. स्टेइंग आउटसाइड द लेग स्टंप, और लूज गेंद थी और उसको वहीं पहुंचाया जहां ये गेंद जाने की मुस्तहिक थी. 4 फील्डर सर्कल के अंदर हाफ साइड पर, सीधा कवर्स में, लेकिन बाइसेक्ट कर दिया है और गेंद बाउंड्री लाइन के करीब जाकर अब जाकर टकरा गई, और इस तरह ये एक और बाउंड्री हासिल हुई है फॉर लाड़काना. ये बेहतर तरीका था, अच्छा टाइम किया. ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट थी. जैसे ही देखा गेंद राइज है, बल्ले को तिरछा किया. Look again, very slow, but this time he got the connection and found the gap too. Is it a boundary or a 6? That's what we wait for. And that too not very close to the ropes, with some distance to spare actually. It's black and white. Yeah, officially confirmed, 4 runs. The ball now being awaited. Yep, that's nicely done. That's a great one. Finally, Ghulam breaking the shackles and hit it for 6. This strike rate. Oh, nicely done. Where was this before? Very cute. To predict what he's going to bowl. And this time around, it's a hit straight. And it goes the distance with ease. 6 more. So some excitement coming back into the game with this big over. Yeah, that's where he was eyeing, but over the head of the fielder.
Yes, he was looking for that area, got the length. He's appealing for it. Given out by Imtiaz Iqbal. Came down the track, but still the point of impact was probably within the stumps. That's why he's given it out. Yeah, straight ball pushed in quicker and didn't bounce that much, was going straight and hitting the back leg, and rightly so, umpire making the right decision. And after a gritty 29 of 33, Huzaifa returns to the dugout. Larkana 86 for 4. Oh, this is hit straight, and it will cross the ropes. No time for the fielders to stop it. It was well struck by Ghulam. और इसी दौरान बहुत बड़ा शॉट गुलाम के बल्ले से निकलता हुआ 6 रन के लिए, और 50 रन भी मुकम्मल किए गुलाम ने। और ये बड़ा हिट है, क्लियर किया है कि नहीं, लॉन्ग ऑन मौजूद, लॉन्ग ऑफ और कैच। खतरा तो लेना पड़ना ही था, लेकिन खतरे के साथ नुकसान भी उठाना पड़ा इस मरतबा। जिस कनेक्शन की तलाश में थे, इब्राहिम ने बॉल आगे ज़रूर किया था, बड़ी हिट के लिए गए भी, लेकिन फासला हासिल ना कर पाए। गेंद हवा में थोड़ा सा स्लो कराया था, आउटसाइड ऑफ टर्म गेंद था जिसको सीधा खेलने गए, और कैच हाथों से निकला ज़रूर, लेकिन शुक्र है ज़मीन पे नहीं गिरा। एक और झटका लाड़काना को, और अब उम्मीदें, ये कहना गलत नहीं होगा कि टूट गई हैं इनकी। गुलाम रजा सीधा हवा में गेंद, फील्डर नीचे आ रहे हैं और ड्रॉप कर दिया। बहुत टाइम था इनके पास, नहीं मेरा ख्याल है पकड़ लिया है, क्योंकि जो तासुर दिए थे शुरू में वो यही लग रहा था कि शायद ड्रॉप कर दिया। तो रिएक्शन इस तरह दिया था जैसे मायूस हो गया, कैच ड्रॉप हो गया, लेकिन कैच को पकड़ने में कामयाब रहे। इब्राहिम की तीसरी विकेट, बिल्कुल फेयर डिलीवरी। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, मरता क्या ना करता, हर गेंद पे ट्राई करना होगा, और ये पहला जगल किया, उसके बाद कैच को पकड़ने में कामयाब रहे। और तासुर इस तरह दिया था जैसे कैच ड्रॉप हो गया है, जाना होगा मुश्ताक को। खेलना मिड विकेट की जानिब चाह रहे थे, लेकिन खलील ने शॉर्ट पिच बॉल कराई और चौका जो है वो ऑफ साइड पे हासिल किया। और लीजिएगा आखिरी बॉल, और यू जीत गया इस मैच को कोयटा ने बासानी। लगातार दूसरी कामयाबी, काफी खुश दिखाई दे रहे हैं बिस्मिल्लाह खान, और होना भी चाहिए। उनका बल्ला रन्स कर रहा है, उनकी जो टीम है वो फील्डिंग में बेहतर कारकर्दगी दिखाई दे रही है। एक और बड़ा दिन कोयटा के लिए। कोयटा ने अपने फैंस, अपने डग आउट, अपने सेलेक्टर्स, सभी के दिल जीत लिए। लाड़काना के लिए एक मरतबा फिर बुरा दिन। लाड़काना ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया था, और यहाँ पे टॉस पे जाहिद ने ये जिक्र ज़रूर किया था कि मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन फिर भी चेस करने की ऑप्शन उन्होंने ऑप्ट की। कोयटा ने जैसे पिछली गेंद में बहुत कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दी थी, वैसा ही बैटिंग में भी आगाज़ किया, एक बड़ा टोटल लगाया, बिस्मिल्लाह की शानदार इनिंग्स। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए बॉलिंग की, तो वो भी बहुत उम्दा की, अच्छा आगाज़, नए बॉल को अच्छा यूटिलाइज़ किया। बैटिंग कार्ड पर नजर डालते हैं। जाहिद ने बनाए 10 रन, हुज़ैफा थोड़ा सा इनिंग्स बिल्डअप करे, लेकिन 33 गेंदें ले ली, बहुत ज़्यादा। 29 रन बनाए। गुलाम ने बनाए 52 रन, शाहजेब ने बनाए 14 रन, और इसके अलावा जो बाकी दीगर बैटर्स थे वो डबल फिगर में भी ना दाखिल हो पाए।
कोयटा की जानिब से शानदार बॉलिंग, नजीबुल्लाह की विकेट हासिल नहीं कर पाए, लेकिन जो चेस का मोमेंटम था वो उन्होंने सेटअप कर दिया था। खलील दूसरे एंड से विकेट हासिल करते रहे, 3 विकेटें उनके नाम और 3 विकेटें इब्राहिम के नाम। ओवरऑल स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स का मयार जो था बॉलिंग का बहुत उम्दा रहा, इसकी वजह से लाड़काना हदफ के करीब भी नहीं पहुँच पाया। पहले कोयटा को बैटिंग की दावत दी गई, बिस्मिल्लाह ने 60 रन बनाए, यासिर के 45 रन, 186 का टारगेट था और मुश्ताक ने 2 विकेट हासिल की, जाहिद और शाहनवाज के नाम गई 1-1 विकेट। जवाब में थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी थी गुलाम और हुज़ैफा के दरमियान, 52 गुलाम के, हुज़ैफा के 29, लेकिन बॉलिंग की बात की जाए तो बिल्कुल भी सर उठाने का मौका नहीं दिया। 3 विकेटें खलील की, 3 इब्राहिम की और कोयटा रीजन ने बहुत ही कन्विंसिंगली ये मैच 62 रन से हासिल किया।